السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ، تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں۔ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ کراچی کے علاقے بلدیہ حقانی محلہ گلی نمبر 11 میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں میاں بیوی اور بیٹا شامل۔ فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے فائرنگ کا ایک اور واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا جو کراچی کے علاقے بلدیہ حقانی محلہ گلی نمبر 11 میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں میاں بیوی اور بیٹا شامل۔ کراچی کورنگی میران ٹاؤن میں پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شہید اہلکار کے بھائی کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا جس میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں۔ مدعی کا کہنا ہے کہ بھائی 3 اپریل 2017 کو سندھ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ ایف آئی آر کے متن میں لکھا ہے کہ بھائی عارف آج بھی وردی میں گھر سے روانہ ہوا تھا۔ کراچی کورنگی میران ٹاؤن میں پولیس اہلکار کی ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شہید اہلکار کے بھائی کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا جس میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں۔ مدعی کا کہنا ہے کہ بھائی 3 اپریل 2017 کو سندھ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ ایف آئی آر کے متن میں لکھا ہے کہ بھائی عارف آج بھی وردی میں گھر سے روانہ ہوا تھا۔ کراچی کورنگی میران ٹاؤن میں پولیس ٹارگٹ کلنگ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ شہید بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل۔ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ بھائی 3 اپریل 2017 کو سندھ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ گجرات میں پولیس نے ٹک ٹاکر اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اسلحے کے ساتھ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ جلال پور جٹا پولیس نے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں گجرات میں پولیس نے ٹک ٹاکر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اسلحے کے ساتھ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ جلال پور جٹا پولیس نے اسلحہ بھی برآمد کر لیا جبکہ پنجاب پولیس کی طرف سے اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ گجرات میں پولیس نے ٹک ٹاکر کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزم نے اسلحے کے ساتھ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ جلال پور جٹا پولیس نے اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ پنجاب میں میٹرک کے طلبہ اور طالبات کے لیے خوشخبری۔ میٹرک کا رزلٹ کا اعلان آج شام 5 بجے کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے مطابق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز آج شام ایک ہی وقت رزلٹ کا اعلان کریں گے۔ رزلٹ کا اعلان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں میٹرک کے طلبہ اور طالبات کے لیے خوشخبری۔ میٹرک کے رزلٹ کا اعلان آج شام 5 بجے کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے مطابق پنجاب کے تمام بورڈز آج شام ایک ہی وقت رزلٹ کا اعلان کریں گے۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں کا مزید کہنا تھا رزلٹ کا اعلان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں میٹرک کے طلبہ اور طالبات کے لیے خوشخبری۔ میٹرک کے رزلٹ کا اعلان آج شام 5 بجے کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کے مطابق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز آج شام ایک ہی وقت رزلٹ کا اعلان کریں گے۔ صوبائی وزیر راجہ یاسر ہمایوں کا مزید کہنا تھا رزلٹ کا اعلان تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے متاثرین کو ریلیف کے لیے سائنس سرکار کا انوکھا فیصلہ۔ متاثرین کی تفصیلات جمع کرنے کے لیے ریلیف کمیٹی میں صرف پیپلز پارٹی کے صوبائی عہدیداروں کو ہی عہدوں سے نوازا گیا۔ متاثرین کو امداد کی فراہمی کے عمل کی شفافیت پر سوالات کھڑے ہو گئے۔
لیکن سائیں سرکار پھر بھی نہ جاگ سکی۔ سائیں سرکار مصیبت کے اوقات میں بھی صرف اپنوں کو نوازنے کی روش پر قائم ہے۔ 4 بڑے ضلعوں میرپور خاص، عمرکوٹ، سانگھڑ اور بدین میں سیلاب کی تباہکاریوں سے متاثرہ افراد کی تفصیلات جمع کرنے کے لیے صرف پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنماؤں کو ہی صوبائی ریلیف کمیٹی کے عہدے سونپے گئے۔ سندھ ریلیف کمیٹی کے کنوینر اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو کی جانب سے جاری کردہ سرکولر کے مطابق ریلیف کمیٹی کے تمام اہم عہدے پارٹی کے ضلعی صدور، ضلعی جنرل سیکرٹریز، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر، تعلقہ صدور اور تعلقہ جنرل سیکرٹریز کو نوازے گئے ہیں۔ صوبائی سیلاب ریلیف کمیٹی میں صوبائی انتظامیہ کے کسی عہدیدار کو شامل نہ کرنے سے ریلیف کمیٹی اور حاصل ہونے والے معاملات کی شفافیت پر شدید نوعیت کے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا واقعی حقیقی متاثرین ریلیف سے مستفید ہوں گے یا ریلیف میں بھی پارٹی کارکنوں کو ہی نوازا جائے گا؟ وفاقی حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ حیدرآباد میں یوٹیلیٹی سٹور پر چینی اور آٹا نایاب ہو گیا۔ دیکھتے ہیں جانزیب علی کی رپورٹ میں۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر پچھلے چند ماہ سے آٹا اور چینی غائب ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے ہیں، جبکہ عوام آٹا اور چینی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی فی کلو قیمت 68 روپے اور آٹے کا 10 کلو کا بیگ قیمت 400 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ میں چینی 100 روپے کلو اور آٹے کا 10 کلو کا بیگ 620 روپے کا فروخت ہو رہا ہے۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آٹا اور چینی دونوں نایاب کر دیے انہوں نے، یہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دیتے چینی، پہلے ہی ان کے آتی نہیں ہے چینی، جب بھی آتے ہیں چینی ہے نہیں کے لیے آٹے کے لیے وہی لائنیں لگی پڑی ہیں۔ چینی جب ہوتی ہے تو رش نظر آتا ہے، ویسے کوئی صورت آ رہی نہیں ہے۔ مہینے کے اندر پورا محرم ہو گیا، ایک دفعہ چینی نہیں آئی، اس کے بعد مہینہ گزر جاتا ہے، بندے چکر لگا کے چلے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر وہی مارکیٹوں کے دھکے ہیں۔ اگر چینی لوگے تو گھی بھی لو، اس کا تو بھی لو، غریب آدمی کیا کرے گا؟ اگر اس کو صابن چاہیے تو صابن لے آئے گا، چینی لے آئے گا، آٹا نہیں بولا آٹے شام کو آنا، اب شام کو پھر گھر چھوڑ کے آئے اپنا کام وام چھوڑ کے آئے، تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دے۔ حکومت کو چاہیے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کے ساتھ دوسری تمام اشیاء خوردنوش مہیا کی جائیں تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین مانی پٹھان کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے فاضلہ کچھ کا دورہ کیا اور متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے فاضلہ کچھ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اراضی ریکارڈ سینٹر اور سکولز کی سولرائزیشن کے پروجیکٹ کا افتتاح کیا اور اسپورٹس اسٹیڈیم کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور بنیادی مرکز صحت اور ہائی اسکول کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان بھی کیا، جبکہ فاضلہ کچھ کے کچھ ریسکیو 1122 موٹر بائک اور ایمبولینس سروس کا بھی افتتاح کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا ترقی کے سفر کو بڑے شہروں کے ساتھ پسماندہ علاقوں تک لے کر آئے ہیں۔ کئی دہائیوں سے نظر انداز علاقوں کو پہلی بار ان کا حق دیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں بڑھتی مہنگائی کی تو ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری شدید پریشان ہیں۔ شہریوں نے حکومت وقت سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپوت۔ شہری شدید پریشان ہے۔ آٹا، چینی، دال، گھی، چاول اور سبزی فروٹ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے غریب آدمی کے منہ سے 2 وقت کا نوالا چھین لیا۔ شہریوں کا بڑھتی ہوئی مہنگائی پر سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، جیسا کہ کورونا وائرس اور ملکی حالات کی وجہ سے اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے غریب آدمی جو کہ پہلے پسا ہوا تھا اس پر اور بوجھ پڑ گیا ہے، اور تمام چیزیں جو ضرورت کی ہے وہ غریب کی پہنچ سے باہر ہیں۔ عمران خان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سبزی کی قیمتوں میں جو ہے نا اضافے کو کم کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے غریب آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے دعوے بیان بازی کی حد تک دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک طرف اجرت کم ہے تو دوسری جانب بے تحاشا مہنگائی، جبکہ پرائز کنٹرول کمیٹیاں منظر سے غائب ہیں اور ناجائز منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ حکومت ناجائز منافع خور اور بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ٹھوس عملی اقدامات کرے تاکہ غریب اور مزدور طبقے کو 2 وقت کی روٹی میسر آ سکے۔ ملک بھر کی طرح کمالیہ میں بھی سبزی اور اشیاء خوردنوشی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے شہری شدید پریشان ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے فی الفور بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے
कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ असद राजपूत, साजी न्यूज़ टीवी, कमालिया। दीगर शहरों की तरह समंदरी में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रिपोर्ट करेंगे शहबाज मदनी। समंदरी में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आकर शहरियों को मुंह चढ़ाने लगा। शहरी सस्ती सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। कहीं रेट लिस्टें ही वेजा नहीं तो कहीं दुकानदार शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। इसी हवाले से शहरियों का कहना था कि गोश्त तो पहले ही गरीब आदमी की पहुंच से दूर था, अब सब्जियां खरीदना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो गया। कद्दू शरीफ है वो भी 120 रुपए किलो हुआ है। शलजम है जो 10-20 रुपए किलो वाली चीजें थी 120 रुपए किलो हुई हैं। गोश्त तो पहले दूर था आवाम की पहुंच से, अब सब्जी भी आवाम की पहुंच से दूर हुई है। हर एक लै बह गया, सब्जी जाओ बाजार चो लभदी नहीं, कोई चीज चल जाओ लभदी नहीं। चुक्की जी 800 की 1500 की हुई है, कितने लोग जान। हाँ जी, उन्होंने दावे किए, उन्होंने वादे किए, मैं बिजली बिल गरीब आदमी 6,000 8,000 बिल आता पे। गरीब आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, ऊपर से सब्जियों की कीमतों में इजाफे से शहरियों का जीना अजीरन हो गया। जहां जरूरियात जिंदगी की दूसरी अशिया महंगी हुई हैं, वहीं सब्जियों को भी पर लग गए हैं। अवाम का मुतालबा है कि हम पर रहम किया जाए। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज, समंदरी। मुख्तलिफ इलाके बाग मोहल्ला, टोया मोहल्ला इस्लामिया स्कूल के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन अरसा दराज से सेवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जेहलम के मुख्तलिफ इलाकों बाग मोहल्ला, टोया मोहल्ला, इस्लामिया स्कूल मोहल्ला के घरों में सीवरेज का गंदा पानी वाटर सप्लाई की पानी में मिक्स होकर शहरियों के घरों में पहुंच रहा है। शहरी अरसा दराज से वाटर सप्लाई का सीवरेज मिला पानी पीने पर मजबूर है। अहले इलाका के बारहा एहतजाज करने पर हाल कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका में गंदा पानी पीने से इलाका मकीनों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खतरा है। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा, नालों की सफाई कराओ, कूड़ा गिरकट उठाओ। जी डेफिनेटली ये इशू है, और इसमें अब तक जो हमने सर्वे किया है 5,227 हमारे रिहायशी कनेक्शंस हैं और 108 हमारे कमर्शियल कनेक्शंस हैं, जहां पे हमें इश्यूज आ रहे हैं कि वहां पे या तो वाटर टैप उन्होंने लगाया हुआ या वहां पे लीकेज है। अहले इलाका में गंदा पानी पीने से इलाका मकीनों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खतरा है, जिसका फौरी हल निकाला जाए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज, जेहलम। रावलपिंडी की सारिफ अदालत ने फैसला सुनाना शुरू कर दिए। सारिफ अदालत का स्टोन क्राफ्ट कंपनी को हर्जाना अदा करने का हुक्म। कंपनी को 3,37,000 रुपए शहरी को अदा करने का हुक्म दिया गया। शहरी ने खराब मार्बल देने की शिकायत की थी। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, रावलपिंडी की सारिफ अदालत ने फैसला सुनाने शुरू कर दिए। सारिफ अदालत का स्टोन क्राफ्ट कंपनी को हर्जाना अदा करने का हुक्म। कंपनी को 3,37,000 रुपए शहरी को अदा करने का हुक्म कर दिया गया। शहरी ने खराब मार्बल देने की शिकायत की थी। विहाड़ी के नवाई इलाके 75 WB में सफाई की अबतर सूरत हाल है। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, जबकि सीवरेज का पानी गलियों में खड़ा होने से शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। विहाड़ी का इलाका 75 WB मसाइल का गढ़ बन चुका है। सेवरेज सिस्टम नकारा होने के बायस गलियों बाजारों में गंदा पानी खड़ा हो चुका है। जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सेवरेज के पानी और गंदगी से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। अहले इलाका के रेशी को कहना है कि सबसे देख लो साढ़े डेंगू बीमारी फैलती भी सब तुझे आप दे लो सब इसकी बीमारी फैलती है। मैं की कर महल्ले में बुढ़िया भी कहती है, बच्चे भी कहते हैं और रहने हैं जी। जिन्ना चिर इतने सही बंदा नहीं होगा उन्ना चिर ठीक नहीं हो सकते कभी भी। ये पहले गटर लाइन साफ होवे फिर जाके सही होने। किसी सियासी जमात ने आज तक इस गांव पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। गलियों में खड़ा पानी होने से डेंगू फैलने का भी खतरा लाक है। इसलिए शहरी इलाकों में तो क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पर काम हो रहा है, लेकिन इस गांव में ना तो साफ पानी है ना ही कोई डिस्पेंसरी है। लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस जदीद दौर में भी इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोट्स लेते हुए इस्लाह और हवाल का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज, विहाड़ी। दीना में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली और गफलत हर हद पार कर गई। कई हफ्तों से जारी नालों की सफाई का काम मुकम्मल न हो सका। जगह जगह गड़े पड़ने से हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन शाह।
म्यूनिसिपल कमेटी दीना की नायली के बाईस शहर खंडात में तब्दील हो गया है। मंगला रोड के दोनों तरफ नालों की सफाई के नाम पे उखेड़े कई हफ्ते गुजर गए, मगर ना ही सफाई की गई ना ही कोई हिफाजती इकदाम। खुले नाले शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। मुतअद्दिद बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग शहरी इन नालों की नजर हो रहे हैं, लेकिन मुतलका काम शहरियों की हिफाजत के लिए कोई इकदाम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बगैर किसी नोटिस के रात की तारीकी में नालों को तोड़ा गया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद दुकानों को नुकसान पहुंचा। खुले नालों की वजह से ताजर बरादरी के कारोबार ठप होके रह गए हैं, जिसकी वजह से ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। रात को ना इन्होंने हमें बताया ये तोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए हमारी शॉप सारी फ्रंट से तोड़ गए हैं। रात को हम घर में सोए, हमें क्या पता इन्होंने आना है। ना इन्होंने एक दिन पहले हमें आगाह किया है हमने कुछ ऑपरेशन करना है या साफ करना है। बात ऐसी है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करती है तो वो एक तरीके से करती है, गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ देखिए इन्होंने पूरा उखाड़ दिया, लोगों के कारोबार तबाह हो गया, हमारा खुद का कारोबार तबाह हो गया। इनको चाहिए कि आगाह करना चाहिए था, इन्होंने कोई आगाही माम नहीं की। दीना बल्दिया का कोई काम ऐसा हमारे सामने नहीं चल रहा जो हम उसकी तायद करें। यहाँ पर तो सब कुछ देख लें, हमारी तो छोड़े, हम दुकानदार हैं, ये लोग आते हैं, बीबियाँ आती हैं, उनका देखें क्या हाल हो रहा है। कोई नाले में गिर रही है, कोई बाहर जा रही है। शहरियों और ताजर बरादरी ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नालों की सफाई और तामीरात का काम जल्द अज जल्द कराया जाए, ताकि हम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज, दीना। सेवन शहर का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने की वजह से शहरी और जायरीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे शामीर खान। कलंदर शहबाज की नगरी और वजीर आला सैयद मुराद अली शाह के अपने अब्बाई और इंतखाबी हल्का सेवन शरीफ में पीने के साफ पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। पानी की किल्लत और फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी 7 के रहनुमाओं ने असगर सोलंकी, मंसूर चन्ना, अली नवाज, रिंद, मोहम्मद खान सोलंकी और दीगर ने धमा चौक से 7 प्रेस क्लब तक रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली के शुरा ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ पे जो फिल्टर प्लांट पानी की फरामी के साफ पानी की फरामी के लिए लगाए गए थे वो तबाही का शिकार है। इसलिए जो सेवन शरीफ के शहरी है वो पीने के साफ पानी के लिए तड़प रहे हैं। 15 दिन से सेवन के जो है ना पानी नहीं है। सेवन में गलीज पानी जो है वापरा जा रहा है, वहाँ से यहाँ से जो है मुख्तलिफ बीमारियों जो है मुँह निकालती है। मुजाहिरीन का कहना था कि सेवन शहर की वाटर सप्लाई स्कीम पर मौजूद वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता 2 हफ्तों से खराब है। फिल्टर प्लांट के सोलर पैनल से सोलर प्लेटें भी निकाल कर गुम करवा दी गई हैं, जिसकी वजह से फिल्टर प्लांट बंद पड़ा है। उन्होंने वजीर आला सैयद मुराद अली शाह, कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच और जिले इंतजामिया जाम शोरों से पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर साजन मलकीना अली का नोटिस लेकर सेवन शहर में पीने के साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा में राजा सोलंकी के साथ शामीर खान, उठो सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। जिरावाले में म्यूनिसिपल अमले की गफलत के बायस शहरी गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। गंदगी के बायस वबाई अमराज फूटने का खदशा बढ़ गया। रिपोर्ट करेंगे मुजम्मिल राना। हालांकि मारूफ सड़कों और रिहायशी इलाकों में जाबजा गंदगी और गलाजत के ढेर लग गए, जिसकी वजह से इलाका मकीन वबाई अमराज का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना था, सामने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वो नजर आ रहा है किश्वर डेंटल केयर, जिसके सामने ये इतना कूड़ा है और ये हम भी काम करते हैं इधर, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू है। मेश रहा है ये शहर की, और इधर भी बहुत ज्यादा गंदगी है। ऐसे ही ये स्टेडियम के पास है, स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा गंदगी है। तो लिहाजा हम कमेटी से और अपना जनाब अपने जो हमारे अफसर हैं उनसे इंतजार करते हैं कि इसको जल्द से जल्द साफ करवाया जाए। शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मेदार अफसरान से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। इन्नी गंदगी है इत्थे, सामने साड़ियां शॉप आ, इधर साइड ते हॉस्पिटल नया बनया वा, अमला आंदा वा कूड़ा चुकदा कोई नहीं, सीधा अगे लंघ जांदा वा, सानू कहंदा जी पैसे देवो। अब मेन रोड दे उत्ते ही इन्ना ढेर लगा वा गंदा, ये भी है, इस तो अगे भी आ, कोई बंदा नहीं आंदा, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। इन्नियां बीमारियां फैलनियां, मच्छर वगैरह तो पैदा हो रहा। म्यूनिसिपल कमेटी जिरावाला की गफलत और लापरवाही के बायस सड़कों पर जाबजा गंदगी के ढेर लग गए, जिससे वबाई अमराज के फूटने का खदशा बढ़ गया है। कैमरामैन सैयद नाशा के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज़ जिरावाला। सिंध के शहर खैरपुर में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस गंदगी के ढेर लग गए हैं। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर से शहरियों की जिंदगी अजीरन, जबकि सांस लेना भी दुश्वार हो गया। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर।
खैरपुर म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस गली चौकों और रोड रस्तों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। कई बार इंतजामिया को इस तरफ तवज्जो दिलाई है, पर अभी तक किसी ने भी नोटिस नहीं लिया। इस हवाले से मजीद शहरियों का कहना है कि जो सिलसिला यहाँ सफाई का बिल्कुल नाकिस है। हफ्ते में 1 या 2 दफा अगर सफाई करने यहाँ आएंगे तो ठीक है, वरना तो कहना पड़ता है, बुलाना पड़ता है। नालियों का हालात देख रहे हो। कचरा ये है कि हफ्ते में 1 दफा उठाने आएंगे, वो भी मिन्नतें समाजत करने के बाद यहाँ आते हैं। आला हुकाम पता नहीं कहाँ गुमे। म्युनिसिपल का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है, बिल्कुल नाकिस है। हर बंदा परेशान हाल है इनके करतूतों की वजह से। म्युनिसिपल के बंदे ये है कि कोई किस्मत से यहाँ नजर आएगा आपको। और ये सारा कचरा ये है कि ये पिछली गली है, ये अंदर गली है, ये सारी गली, सारा बाजार, जबकि पूरा हैदरी बाजार का कचरा तकरीबन यहाँ फेंका जाता है। रेजिडेंसी एरिया सारा, कमर्शियल है सारा, उसके बावजूद भी कचरा उठाने के लिए कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। शहरियों का कहना है कि सफाई का अमला मुख्तलिफ सियासी हाउसेस पर काम करने में मसरूफ है। सफाई का अमला तनख्वाह सरकारी लेते हैं, पर काम सियासी हाउसेस पर करते हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर बनाए जाए। कैमरा टीम के साथ अली गोरगोपांग, सच न्यूज खैरपुर। मुल्क भर की तरह सक्खर में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। अवाम के साथ साथ ताजिर बरादरी भी शदीद परेशान है। रिपोर्ट देखिए। सेब को मस्त हाथी बन चुका है। गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 8 घंटे से 10 घंटे तो कहीं 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। अवाम और ताजिर ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। सख्त और हब्स वाली गर्मी में लोड शेडिंग से घरों में खवातीन और बच्चे परेशान। लोड शेडिंग की वजह से तिजारती सरगर्मियां सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। एक तरफ महंगाई से आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए हैं। सेबको के लोड शेडिंग के वादे और दावे सिर्फ सियासी नारे बन चुके हैं। लोड शेडिंग के हवाले से ताजिरों ने सच न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, काम कर लिए तो 12 घंटे करते हैं, उसके बाद जो कुछ है, अभी भी हम जो बैठे यूपीएस में बैठे हुए मेरे भाई, ये हालत ये है कि सारा कारोबार तबाह हो गया। उत्साह गर्मी भी है। गर्मी में जो है ना बच्चे जो है ना गर्मी की वजह से काफी उनकी परेशानियां हैं। और उसके बाद जो है ना फिर इतने बड़े बड़े बिल भी आते हैं। फिर उसके बावजूद भी बिजली जो है ना, इन लोगों ने कहा था कि बिजली के इंतजाम ठीक होगा, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो चुका। लाइट के बगैर आजकल कुछ भी नहीं है। यूपीएस चला रहे हैं हम, 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो इंतजामिया से सबको चीफ से हमारा मुतालबा है कि मेहरबानी करें, ज्यादा से ज्यादा इलाकों को एक्सप्रेस करें और लोड शेडिंग से हमारी जान छुड़ाएं। हुकूमत आवाम और ताजिर बिरादरी को लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाने के इक़दामात करे। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध से मुल्हिका दर्जनों बस्तियां दरियाई कटाव की जद में हैं, जिसके बायस इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे अली रजा हमदानी। डेरा गाजी खान में हालिया बारिशों के बायस निचले दर्जे का सैलाब जारी है। दरियाई कटाव के सिलसिले में आए रोज इजाफा हो रहा है, जिसके बायस दरिया के करीबी इलाकों को शदीद खतरा लाहक है। मौजा समीना, बस्ती सुखेरा, रेंदडा और जखड़ इमाम शाह की मुख्तलिफ बस्तियां और मौजा दरियाई कटाव की जद में हैं। दरियाई पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो चुका है। पानी में मुसलसल इजाफे के बायस रिहायशी आबादी के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। रिहायशी आबादियों के लोग अशिया खुर्दनोश और दीगर कीमती सामान अपने साथ लेकर घरों को छोड़ने पर मजबूर दिखाई देते हैं। दरियाई पानी में मुसलसल इजाफे के बायस जहां फसलात को शदीद नुकसान पहुंचा, वहीं पुख्ता रोड भी शदीद मुतासिर हुए हैं। रोड्स पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजामात न होने की वजह से इलाका मकीन ज़हनी तौर पर शदीद अजियत का शिकार नजर आते हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुतालबा किया है कि मुतासरा इलाकों को फौरी तौर पर आफत ज़दा करार देकर माली इमदाद की जाए। अली रजा इमदानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। लोधरा की तहसील दुनियापुर में भट्टा मजदूर तयशुदा उजरत न मिलने पर भट्टा मालिकान के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजदूरों ने एहतजाज करते हुए हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे कासिम अब्बास। दुनियापुर के नवा इलाके चक नंबर 301 WB में भट्टा मालकान गरीब मेहनतकश मजदूरों को गवर्नमेंट शेड्यूल की खिलाफवर्जी करते हुए उजरत बहुत ही कम देने लगे। दर्जनों भट्टा मजदूरों ने भट्टा मालकान के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने भट्टा मालकान पर इल्जाम ऐद करते हुए मीडिया को बताया कि भट्टा मालकान हमें गवर्नमेंट शेड्यूल की खिलाफवर्जी करते हुए उजरत की आधी रकम देते हैं। हम मेहनतकश गरीब मजदूरों को हमारा हक नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से इस महंगाई के दौर में हमारे घरों में फाकों का समा है। हमने भट्टा मालकान को मुतअद्दिद बार
गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक मुआवजा देने का कहा है, मगर भट्ठा मालकान टाल मटोल से काम लेते आ रहे हैं। जब हम मामूली उजरत पर काम करने से इनकार करते हैं तो हम गरीब मेहनत कशों को संगीन नतज की धमकियां दी जाती हैं। हम गरीब लोग हैं, गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक उजरा न मिलने पर भी मजबूरन हमें काम करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार, डिप्टी कमिश्नर लोधरा, इमरान कुरैशी व दीगर हकाम आला से दर्दमंदाना अपील करते हुए कहा कि हम गरीब मेहनत कशों को गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक उजरत दिलाई जाए और हमारा हक खाने वाले भट्ठा मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर काज़िम अब्बास बलोच, ब्यूरो चीफ, साची न्यूज़, लोधरा। चिश्तिया शहर में महकमा रेलवे का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। रेलवे अराजी पर गैर कानूनी तौर पर मुतअद्दिद दुकानें, ठेले, बस और ट्रक स्टैंड के साथ टिम्बर माफिया भी बड़ी तादाद में काबिज थे। मजीद तफसीलात राना इमरान की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया में महकमा रेलवे की कीमती अराजी पर अरसा दराज से नाजायज काबजीन के खिलाफ महकमा रेलवे का ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें चिश्तिया शहर में 5 किलोमीटर कीमती अराजी में से पहले मरहले में 2 किलोमीटर को काबजीन से वागजार करवा लिया गया, जिस पर अरसा दराज से ये लोग गैर कानूनी तौर पर मुतअद्दिद दुकानें और ठेले वगैरह या निजी बस और ट्रक स्टैंड के साथ साथ टिम्बर माफिया बड़ी डटाई से काबिज था को मुतअद्दिद बार महकमा रेलवे की जानिब से नोटिस दिया गया, लेकिन कब्जा माफिया के कान पर जूं तक ना रेंगी। बल्कि महकमा रेलवे ने 1830 में ट्रैक को तमीर करते वक्त इसके दोनों तरफ इसको 120 फुट चौड़ा रखा था, जो कब्जा माफिया की वजह से दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ 60 फुट रह चुका है। बल्कि महकमा रेलवे ने 1830 में ट्रैक को तमीर करते वक्त इसके दोनों तरफ इसको 120 फुट चौड़ा रखा था, जो कब्जा माफिया की वजह से दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ 60 फुट रह चुका है। इस मौका पर AEN रेलवे मलक सजाद की जेरे निगरानी ऑपरेशन हुआ, जिसमें महकमा रेलवे के साथ पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर तैनात थी। महकमा रेलवे बहावल नगर का कहना था कि हम अपने अहकामे बाला के अहकामात के मुताबिक इस रेलवे की करोड़ों रुपए की कीमती अराजी को वागजार करवाने के बाद मेरिट पर लीज पर देंगे, ताकि महकमा रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ राणा इमरान, अफजल, सच न्यूज, चिश्तिया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम, मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। शुजाबाद में खोखरा स्टॉप के करीब मुसाफिर वैन दीवार से टकरा गई। हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन जलालपुर से लाहौर जा रही थी कि हादसे का शिकार हुई। बखर की तहसील मनकेरा में मोटरसाइकिल हादसे में एक नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। उकाड़ा के शहर रिनाला खुर्द में ट्रेन से गिरकर नौजवान जाँ बहक हो गया। ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी कि हादसा पेश आया। खैरपुर में ओल्ड नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स मौका पर जाँ बहक हो गया। रायविंड में मुल्तान रोड पर ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। चकवाल में थाना सदर पुलिस ने ड्राइवर पर तशद्दुद करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। सवारियां बिठाने के तनाजे पर ट्रांसपोर्टर ने ड्राइवर पर तशद्दुद किया, जिसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सच टीवी पर न्यूज चलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। DPO कसूर ने कंगनपुर से अगवा होने वाले कमसिन बच्चे अयान अली के घर का दौरा किया और लवाहिकीन से मुलाकात की। DPO कसूर जायद नवाज मुरव्वत ने कंगनपुरा से अगवा होने वाले कमसिन अयान अली के घर का दौरा किया और जाए वकुआ का जायजा लिया और बच्चे के लवाहिकीन से मुलाकात की। DPO कसूर ने जल्द बच्चे की बाजियाबी को वरसा को यकीन दहानी करवाई। DPO का कहना था कि जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके बच्चों को बाजियाब कर लिया जाएगा। कुदरती ज़खायर से मालामाल इलाके कोहाट में तेल और गैस के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। योमिया 23,000 बैरल तेल और 9.1 MMCF गैस हासिल की जा सकेगी, जिससे मुल्की खजाने को अरबों रुपए का ज़ेर मुबादल हासिल होगा। मजीद तफसीलात अली वंगिश की इस रिपोर्ट में।
खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट डिवीजन में तेल और गैस के वसी ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें चंदा, मिल्ला, नुशपा, मकोड़ी, टल ब्लॉक और तोबाला व सियाब के कुएं शामिल हैं, जिनसे 23,000 बैरल तेल जबकि 9 MMCF गैस यौमिया हासिल की जा रही है। 430 MMCF डी है डेली, जो हमारा खर्चा है वो 220-30 MMCF डेली है, और पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल है ये तकरीबन 4.8 मिलियन से 5 मिलियन प्लस माइनस 3-4 पोस्ट है। शकरदरा, नसपा, मकोड़ी और कोहाट की ये रीजन में जितनी भी है ये तकरीबन 50 लाख लीटर है, जो 23,000 प्लस माइनस बैरल बनते हैं डेली के। इन ज़ख़ायर के हुसूल से तेल और गैस की मद में न सिर्फ कौमी खजाने को अरबों रुपए का फायदा मिल रहा है, बल्कि गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत से मुल्की मईशत को मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। अली बंगश, सच न्यूज़, कोहाट। लोगों के मसाइल सुनने और उनके हल के लिए चनियोट के थाना भवाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DCO चनियोट और DPO चनियोट ने लोगों के मसाइल सुने। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट देखिए। अवामी मसाइल सुनने के लिए और उनके बर वक्त अजाले के लिए चनियोट का इलाका थाना भवाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख और डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज ने लोगों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों को मौके पर अहकामात जारी किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट और डिप्टी कमिश्नर चनियोट का कहना था कि अवाम को फौरी इंसाफ व दीगर सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। खुली कचहरी को नतीजा खेज बनाने के लिए इकदामात को यकीनी बनाएंगे। लोगों के मसाइल हल करते वक्त इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खुली कचहरी में महकमों के अफसरान और इलाके के लोगों की कासी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज़ चनियोट। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें पाकपतन से, जहां जदीद रिसर्च बेस्ड बीज इस्तेमाल करके ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के बारे आगाही के लिए एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें कम लागत और कम पानी से धान की काश्त के लिए जदीद बीज भी मुतारिफ करवाया गया। तारिक अली चौधरी की रिपोर्ट देखिए। निजी पेस्टिसाइड कंपनी की जानिब से मुनक्कदा तरबीती वर्कशॉप में किसानों को जदीद रिसर्च के मुताबिक फसलों की काश्त के तरीके से आगाह किया गया। वर्कशॉप में कम पानी और सेमज़दा इलाकों में धान के काश्तकारों के लिए जदीद बीज मुतारफ करवाया गया। माहिरीन ने दौरान काश्त दरपेश मसाइल के हल के लिए किसानों को नई रिसर्च से आगाह किया। कंपनी के GM अब्दुल करीम मरी का कहना था, पंजाब के क्लाइमेट के मद्देनजर रखते हुए रिसर्च करके जो है इसको लॉन्च किया गया है। ड्राउट रेजिस्टेंस वैरायटीज एंड सैलिनिटी सॉइल पे भी हमारी वैरायटीज इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पाकिस्तान में मुतारिफ की करवाई जाएंगी। मैनेजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फार्मर्स से चीज़ें लगाते हैं उसका ख्याल नहीं रखते, और ये गैदरिंग का मकसद भी था कि फार्मर्स का ओवरव्यू हो, दूसरे फार्मर जो एक अच्छी पैदावार ले रहे हैं, जो कम पैदावार ले रहे हैं, वो अपनी पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं। इस दौरान सैकड़ों किसानों को काश्त के नए तरीकों की तरबियत दी गई। वर्कशॉप में कुरा अंदाजी के तहत किसानों में मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच TV, पाकपतन। मुल्क को पोलियो फ्री बनाने का मिशन लोअर दीर में 21 से 25 सितंबर 5 रोजा पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह सवाती। DC जरगाहाल बलामबट में 21 सितंबर से होने वाली पोलियो मुहिम के इंतजामात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर सदात हसन की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़िद हुए। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत कर्ज लेकर इंसदादी पोलियो वैक्सीन खरीद रही है और पोलियो मुहिम में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोलियो के इंकारी वालिदैन के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। गवर्नमेंट इतनी बड़ी कास्ट बियर कर रही हो तो फिर जो है इसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज है जो हम साल से कर रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लोअर दीर ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम के बाकायदा इफ्तिताह किया, जबकि मुहिम के दौरान 2,76,000 बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाई जाएगी। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद नजीर, डिप्टी DHO डॉक्टर इरशाद रोगानी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान में इंसदाद पोलियो मुहिम और डेंगू मुहिम की कामयाबी के तमाम वसाइल बरोकार लाने का फैसला किया गया है। मजीद मोहम्मद अली मेहरानी की इस रिपोर्ट में देखिए।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला डेरा गाजी खान में इंसदाद पोलियो और डेंगू मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर तैयब फरूक ने इजलास मुनक्कद करके अफसरान को हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान तैयब फरूक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो और डेंगू मुहिम में किसी भी अफसर और मुलाजिम के फराइज में कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुस्ती दिखाने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तमाम महकमे खिदमत खल्क के जज्बे के तहत काम करेंगे। डेंगू और पोलियो से मुल्क बिलखसूस जिला का मुस्तकबिल सेहतमंद बनाया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मैक्रोवान प्लान के तहत टीमें काम करेंगी। पोलियो और डेंगू टीम की कारकर्दगी बेहतर किया जाएगा। मैक्रो प्लान के मुताबिक टीमें काम करेंगी। पोलियो और डेंगू मुहिम में कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुहिम में उलमा, समाजी कारकुन और हर शोबा से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत का ताउन हासिल किया जाएगा। मुहिम में कोरोना वायरस के SOPs पर भी अमल दरामद किया जाएगा। कैमरामैन रिहान अली के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी डेरा गाजी खान। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार रशीद अहमद जरदारी ने यूनियन कौंसिल जारकी का दौरा किया, मकीनों से मसाइल पूछे और दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। रिपोर्ट करेंगे इम्तियाज हुसैन। बल्दियाती नुमाइंदगान के 4 साल मुकम्मल होने के बाद नौ मुंतखब जिले एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर टंडोलायार रशीद अहमद जरदारी 4 साल कारकर्दगी देखने के लिए मुख्तलिफ देहातों में निकल पड़े। डिप्टी कमिश्नर टंडोलायार रशीद अहमद जरदारी ने टंडोलायार की यूनियन काउंसिल जारकी के गाँव छतन आरेसर में मेन डिस्पोजल का मुआयना किया। गाँव के मकीनों से मसाइल पूछे और गाँव में CC ब्लॉक और दीगर तरक्याती कामों का मुआयना किया। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर टंडोलायार ने यूनियन काउंसिल रावल लगारी के गाँव बहादुर जलबानी में बारिश के पानी समेत स्कूल, RO प्लांट और दीगर स्कीमों का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर टंडोलायार रशीद अहमद जरदारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस वक्त शदीद बारिशों की वजह से अवामुल नास को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं, इसलिए मैं आज खुद चलकर अवामी मसाइल देखने और सुनने आया हूँ। तो जो आजकल मच्छर का एक बड़ा इशू है और उसके स्प्रे के हवाले से पूरे जिले में कैंपेन चल रही है। उसके अलावा जहाँ जहाँ ड्रेनेज का पानी जो मतलब हमारे लिए मुमकिन है निकालना, वहाँ भी हम कोशिश करें कि उस पानी को निकाला जाए। इस मौके पर उनके हमरा डायरेक्टर PND हमाद अहमद जरदारी, ADC 1 अब्दुल हफीज लगारी, ADC 2 शहजादो उमेर जरवार, यूसीज के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार। सिब्बी में मंशियात के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ समाजी और सियासी जमातों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। देखिए उमर फारूक की ये रिपोर्ट। मंशियात एक लानत है जिससे नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। इसी सिलसिले में आज बलूचिस्तान भर समेत सिब्बी में भी मंशियात के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ समाजी व सियासी जमातों समेत तमाम मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हम ये समझते हैं कि मंशियात बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक जहर कातिल है। यहाँ पर हजारों मोटरसाइकिल सवार और कारकुन यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने मंशियात को तर्क किया है, ये मंशियात के खिलाफ हैं, ये रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चीख रहे हैं आज ऐसे एहतजाजी मुजाहरे में कि इनके जो मुस्तकबिल है, जो हमारे नौजवान हैं, उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए। रैली के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मंशियात का खात्मा जल्द अज जल्द बलूचिस्तान भर समेत पूरे मुल्क से किया जाए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल मंशियात की वजह से तबाह बर्बाद होने से बच सके। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज से भी। बसिलसिला शहादत हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इमाम बरगाह हुसैनिया सजादिया चकवाल में सालाना मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर के उलमा और ज़ाकिरीन ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए, जबकि शबीए अलम ज़ुलजना का जुलूस भी बरामद किया गया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। इमाम बरगाह हुसैनिया सज्जादिया न्यू चकवा सिटी चकवा में बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर के उलमा व ज़ाकिरीन ने मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए फ़ज़ाइल व मसाइब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बयान करते हुए कहा कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसे बुलंद अखलाक के मालिक थे कि मोमिनीन के दिल उनकी तरफ खींचे चले आते थे और इस मशले नूर से हिदायत हासिल करते थे। मजलिस अज़ा में अज़ादारों की कसी तादाद ने शिरकत की। मजलिस के अख्ताम पर शेबी ताबू हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी बरामद किया गया, जबकि मुतवल्ली मलिक फिदा हुसैन की रिहाईगाह से शबीए ज़ुलजना और मलिक कलीम हुसैन और मलिक हुसैन अरशद की रिहाईगाह से शबीए अलम का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों ने अज़ादारी करके नौखा ने नौखानी करके शोदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस मुकर्ररा से होता हुआ इमाम बरगाह हुसैनिया सज्जादिया न्यू चकवा सिटी चकवाल पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में 22 के करीब आदमी संगतों ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। मोहब्बत एक ऐसा वस्फ है जिसे पाकर नाबीना देख, बहरे सुन और गुंगे बोल सकते हैं।
آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی پرندہ دکھا رہے ہیں جس کا مالک اور کبوتر یکجاں اور دو قالب کی مثال بن گئے ہیں۔ مزید احوال بتا رہے ہیں کبیل والا سے عبد المجید باٹی۔ خدا کے بعد محبت سب سے بڑی سچائی اور تحریک ہے۔ محبت وہ وصف ہے جسے پا کر نابینا دیکھ، بہرے سن اور گونگے بول سکتے ہیں۔ محبت وہ احساس ہے جو جلساتی دھوپ میں ٹھنڈک، یخ بستہ موسم میں حدت اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی بکھیر دیتی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی بے زبان پرندے سے کروا رہے ہیں جو ایک انسان کی محبت میں اپنی پرواز بھول چکا ہے۔ اس کی زندگی کا محور یہی ایک شخص ہے جس کے ساتھ وہ سائے کی طرح چپکا رہتا ہے۔ کبھی مجبوری میں اسے گھر کہیں اور چھوڑ دیا جائے تو یہ اپنی محبوب کی یاد میں راہ تکتا رہتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اڑ کر اس کے کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مالک کے منہ سے دانہ کھائے بغیر پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ یہ اپنے مالک سے اندھی محبت میں اس قدر گرفتار ہے جو یک جان دو قالب کی مثال پر پورا اترتا ہے۔ میں نے بچپن سے رکھے ہوئے ہیں کبوتر۔ ایک بچہ ایک رات کا بچہ تھا، اس کے ماں باپ مر گئے، اس کو میں نے اپنے منہ سے پالا تو جوان ہو گیا۔ جب بچہ جوان ہوا کبوتر تو اس نے کہا میں پرندہ ہوں، مجھے آنکھ میں عقل دی ہے، تجھے عقل دی ہے، مجھے سمجھنے کی کوشش کر، میں وہ کام کروں جو دنیا میں کسی پرندے نے نہ کیا ہو۔ اب اس پرندے کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے بھی کافی کام کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ذکر ہے کبیر والا سے لاہور موڑ کے رہائشی مرزا اختیار بیگ کا، جو پچھلے کئی سالوں سے کبوتروں کی تربیت کرنے کے علاوہ انہیں اپنے بچوں کی طرح اتنے پیار سے پالتا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ میں کہیں بھی سفر کروں یہ میری والہانہ محبت میں سائے کی طرح میرے پیچھے اڑتے ہیں۔ جس کی زندہ مثال میرے کبوتر کے پیار سے رکھے نام محسن کی ہے، جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ موٹر سائیکل پہ سوار ہوں تو یہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کے اعتبار سے میرے ساتھ پرواز کر سکتا ہے، اور جہاں اسے رکنے کا اشارہ کروں تو یہ اڑ کر میرے کندھوں پر آ جاتا ہے۔ اختیار بیگ کا کہنا ہے کہ میں ایک کبوتر کو 15 سے 20 دنوں کی محنت سے تیار کر لیتا ہوں اور میرے کہنے پر کسی دوسرے کے پاس بھی چلا جاتا ہے، اور میں اسے محسن کے نام سے پکارتا ہوں تو یہ اڑ کر میرے پاس آ جاتا ہے۔ میری ساتھ موٹر سائیکل کے ساتھ اڑتا ہے، کار کے ساتھ اڑتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے میرے ساتھ کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں، یہ میری ساتھ مخلص ہے۔ اگر جو انسان ایسے مخلص ہو جائے تو پوری کائنات کے اندر جو ہے نا کوئی بھی ایسی چیز نہ انسان کو درپیش کا مقابلہ کرنا پڑے۔ کبوتر اور مالک کا یہ انوکھا پیار دیکھنے لوگ دور دراز سے میرے پاس آتے ہیں اور ہماری والہانہ محبت دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پیار کی زبان انسان تو کیا حیوان بھی خوب سمجھتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پیار دل سے کیا جائے۔ مالک اختیار بیگ کا کہنا ہے کہ حکومت میری مدد کرے تو میں ان کبوتروں کو ملکی دفاع کے لیے تربیت دے سکتا ہوں۔ کیمرامین وقاص علی سہو کے ساتھ عبد المجید باٹی، سچ نیوز، کبیر والا۔ دریائے سندھ کے کنارے بسے شہر لیا کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ اسی طرح دریائے سندھ کے کنارے آباد کیل قبیلے کے لوگ ہزاروں سال پرانی تاریخ کے حامل ہیں۔ اس قبیلے کے دریا سے محبت، رہن سہن اور ذریعہ معاش پر رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ دریائے سندھ کے کنارے بسے شہر لیا کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ دریا کنارے آباد کیل قبیلہ کے لوگ بھی ہزاروں سال پرانی تاریخ کے حامل ہیں۔ اگر انہیں دریائے سندھ کا بیٹا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ زندگی کی تمام آسائشوں سے بے نیاز اس قبیلہ کے بچوں، مرد و خواتین کا مسکن ہمیشہ کچی مٹی اور جھاڑیوں سے بنی جھونپڑیاں ہی رہیں۔ ان کا ذریعہ معاش ٹوکرے بنانے کے علاوہ کشتی کے ذریعے لوگوں کو ساز و سامان سمیت دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچانا ہے۔ دریا سندھ اور کیل قبیلہ کا ساتھ جنم جنم کا ہے۔ اس قبیلہ کی خواتین اپنے بچوں کو دریا کے محبت کے راگ سناتے سناتے بڑا کرتی ہیں۔ ایسے دریا کی محبت ان کی گھٹی میں شامل ہو جاتی ہے۔ دریا کی لہروں کے ہاتھوں کئی نسلوں سے تباہی کے مناظر دیکھنے کے باوجود یہ قبیلہ دریا کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ان کی دریا سے لازوال محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہر کی چکا چوند ان کی دل میں بسی دریا کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لیا۔ پنجابی زبان کے مشہور شاعر اور قصہ ہیر کے خالق حضرت پیر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار برصغیر کے عظیم صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی تصانیف ہیر پوری دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 23، 24 اور 25 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں روحی میں بجنے والے ہزاروں سال پرانے رونتی اور چنگ کے ساز کو اب بجانے اور بنانے والے بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں۔ گھوڑوں کے دم اور ناریل کے چھلکے سے روحی کے اجمل بھیل یہ ساز کیسے تیار کرتے ہیں، دیکھیے اس رپورٹ میں۔
روہی میں بجنے والے ہزاروں سال پرانے ساز رونتی اور چنگ موجودہ ترقی یافتہ دور میں نایاب ہو چکے ہیں۔ خانپور کے علاقے سہجہ کے رہائشی اجمل بھیل اس تاریخی اور ثقافتی ساز پاکستان بھر میں بجا کر روہی کی خوبصورت ثقافت کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ ہزاراں سال پرانا ساز ہے، ان کو آخدن چنگ، تو یہ اپنے وڈیرے شوقیہ وجیندے ہیں، سندے ہیں، بارشاں تھی ویندے ہیں والا ٹبیاں تے بہے تے یہ ساز بجیندے ہیں۔ ہن جرا یہ ساز کائیں نہیں رہ گیا، اساں جرا یہ ساز کو اجاگر کرنے پیوں بھئی یہ ساز جرا مر نہ ونجے، کہ پاکستان دا نام روشن کرنے، کہ پاکستان زندہ۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غفار رشید، سچ نیوز، ظاہر پیر۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت دیجیے اجازت۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ SachTV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔